Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day that is reported in both of these newspapers. And additionally, I'll be supplementing with this news with some information so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So today's 8th of January, and these are the list of the topic for the day. New Rewari, New Madar Freight Corridor. The second topic is upcoming spectrum auction. The third topic is state warned of virus spike. The second last topic is rise in World Food Price Index. And the last topic is getting ready for the vaccination. So this is an editorial reported in today's newspaper. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this session so that you could practice some question that will help you in prelims examination. So the first topic, that is New Rewari, New Madar Freight Corridor. So this is an inauguration which was being done by the Prime Minister via video conference. And this is very important for your General Studies paper 3 because infrastructure development is a part of the syllabus General Studies paper 3. And the new initiatives like this would be again helpful in the prelims examination. So what is this? न्यूज में क्या है उसके बारे में थोड़ा समझें. तो न्यू रेवारी और न्यू मदर सेक्शन जो है that is dedicated to the western dedicated freight corridor and that has been recently flagged out by the Prime Minister. Talking about this stretch, this is the world first 1.5 kilometer electrified double decker long haul container that will help the freight corridor to get another leap and another advancement. Now, what is the aim of this project? Pura aim kya hai is project ka? I will show you some infographic which I have taken from PIB and mygov.in so that you can get a clarity and this will help you to get an idea about this, right? तो एम की अगर बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट वाज अ पार्ट ऑफ द मिशन टू मॉडर्नाइज द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. किस तरह से कंट्री में जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहा किया जाए. The second, it was beginning to see the game changer of the 21st century because demand of the 21st century has again been modernized, and talking about the electrified corridors would be something that would be very important. And this section was the first operational after 6 years because इसमें काफ़ी लंबी काम चली है और उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सीधे फार्मर्स को मिलेंगे, इंडस्ट्रिस्ट को मिलेंगे, बिजनेसमैन को मिलेंगे. और जो रीजन की अगर बात करें कौन सी स्पेसिफिक रीजन है जिससे इनको बेनिफिट होगा, so that include NCR, Delhi के जो regions हैं, Haryana and Rajasthan. This corridor would be developed for the growth center in the several cities that would increase the job creations. खास करके जब इस तरह की फ्राइट कॉरिडोर्स बनती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया वुड अगेन बी इंक्रीजिंग. Now, this would provide a new flip of local industries and manufacturing units, providing a faster cheap access to the national and international markets. और अगर बात करें कुछ पोर्ट्स की, तो गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है. Now, I will show you some infographic that will help you understand. तो अगर बात करें मेकिंग स्ट्राइक टू ट्रांसफॉर्म द रेल फ्राइट कॉरिडोर्स, तो सबसे पहली बात है ये जो फ्राइट कॉरिडोर है दैट विल पुश फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, increase in the farmer in through the rail kishan, boost the export traffic and transforming the economic ecosystem. Now what specifically this will help, जो अभी फ्राइट कॉरिडोर जो हुई है रेवारी और मदार के बीच में, this will improve the rail access and build to भिवंडी, रेवारी, मानेसर, अजमेर, जहाँ पे ग्रेनेड जो मार्बल इंडस्ट्रीज है किशनगढ़ में उस एरिया पे इस पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी. इट विल इंक्रीज द फार्म इनकम थ्रू किसान रेल एक्सेस बेनिफिटिंग द फार्मर इन द रीजन. It will also boost export and freight corridor tariff because उस एरिया में पर्टिकुलर अगर लॉजिस्टिक्स हब्स की बात करें तो this would be something that will be very important, giving an income rise to the basically to the export and import sector. Now access to cheaper rail transportation and assurance to the time delivery because अगर एक फ्राइट कॉरिडोर बन रही है जहाँ पे डिलीवरी सिस्टम लॉजिस्टिक सिस्टम इंप्रूव होती है तो टाइम बाउंड बैनर से सारी चीज़ें हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. आप की पॉइंट्स जरूर ध्यान रखें ताकि आप अपने मेंस एग्जामिनेशन ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकें. Now the other benefits that this will ensure seamless connectivity with the western port, Khandala, Pipua, Madura, Dej and Gujarat. Double decker line है जहाँ पे that will undertake the higher haulage and the speed. And heavy haul train operation of 24 ton oxen load तक इसमें कैपेसिटी बनाई गई है and this is for the first time in India.
एंड डबल डेकर जो स्टॉक होती है दैट कंटेन द ट्रेन मूवमेंट, दिस विल ऑल्सो गिव द सेक्शन द boundless delivery pod for evaluating the cargoes and the post, right? So these are some of the dedicated benefits. There's one more infographic like जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 306 किलोमीटर की न्यू रेवाड़ी मदार लाइन को इनोग्रेट किया था ऑन 7th of January, and this was 79 kilometer that fall under the Haryana and 27 belong the Rajasthan, and it will connect the overall region from Haryana Rajasthan to give the boost of the freight and logistic. और अगर बात करें डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल की तो ये 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन है जो कि न्यू इटली हरियाणा और किशनगढ़ राजस्थान में के बीच में वेस्टर्न कॉरिडोर के बीच में ऑपरेट करेगी, राइट? सो डू नॉट कंफ्यूज, द टोटल इज 606 किलोमीटर, और अगर डबल डेकर स्टॉक की बात करें तो दिस इज 1.5 किलोमीटर्स. Now coming to the other news, that is upcoming spectrum auctions, because we had discussed this news about the spectrum. सो अभी आज के न्यूज़ में जो एक्सप्लेन सेक्शन है आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी, उसके कुछ डिटेल्ड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. सो टॉकिंग अबाउट दिस रेलेवेंस, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 बिकॉज आईटी के जो सेक्शन है वहाँ पे भी है, और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, द ऑक्शन ऑफ 4G स्पेक्ट्रम, उसके कुछ स्पेक्ट्रम की जो साइज है जो मेगा हर्ट्ज है लाइक 800, 700, 900, 1800, 2100, 2300 और 25 मेगावाट्स की जो बैंड्स हैं उनकी ऑक्शन शुरू होने वाली है 1 मार्च से. सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी स्पेक्ट्रम किस रेंज में काम करती है ये आप इन्फोग्राफिक से देख सकते हैं. जो 800 की जो रेंज है, मेगा हर्ट्ज की रेंज है, वो गुड डेटा कवरेज देती है. 21 फॉर 3G, 1800 फॉर मोस्टली फॉर वाइज OPS, 2500 फॉर WiMAX, 700 फॉर प्रीमियम सुटेबल 4G, and 2300 for WiMAX technology and 900 for original GSM spectrum. सो आपसे एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यूपीएससी वुड नॉट बी आस्किंग दैट डिटेल. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट्स पॉसिबल दैट दे कैन आस्क यू अबाउट द बैंड इज वेल, कि किस बैंड में क्या बेनिफिट है, राइट? सो मेक श्योर यू नो दिस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन पॉज दिस वीडियो, यू कैन रीड इट आउट. अगर बात करें फ्री चैनल्स की तो 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2 गीगाहर्ट्ज़ में किस किस से चीज़ें ऑपरेट होती है. वाईफाई सर्विसेज हैं, कॉर्डलेस फोन्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं, माइक्रो ओवन्स एंड बेबी मॉनिटर्स आर समथिंग दैट वुड बी ऑपरेटेड थ्रू दिस गीगाहर्ट्ज़. दिस इज एन इंटरफेस दैट वुड बी हेल्पिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो स्टार्ट होने वाली है. स्पेक्ट्रम है क्या, किस तरह से स्पेक्ट्रम काम करती है? तो ये डिवाइस को कनेक्ट रखती है, जो वायरलेस डिवाइसेज होती हैं उनमें सिग्नल प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम वन टू अनदर, and these signal are carried on the airway that must be sent to the designated frequency. जो airways की अगर बात करें, these are called spectrum. ये जो airways जाती है that is the spectrum which is subdivided into band and varying the frequency. अलग अलग frequency पे अलग अलग bandwidth काम करती है, जिस पे accordingly हर spectrum को monitor किया जा सकता है, right? So spectrum auction is again very important. इंडिया में जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी आ रही है एंड चाइना ने ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है, और भी बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने भी 5G रोल आउट कर दिया है. सो दिस वुड बी गिवन एन एडवांटेज फॉर इंडिया कि 5G की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में वो भी एक्सप्लोर की जा सकेंगी. नाउ कमिंग टू अदर सेगमेंट, दैट व्हाई स्पेक्ट्रम इज बीइंग ऑक्शन नाउ. तो बात करें अगर इससे पहले जो ऑक्शन की गई थी इंडिया में, दैट वाज इन 2016 वेयर 2354 मेगाहर्ट्ज ऑफ reserve spectrum was being sold for amount 5.60 lakh crore rupees, right? और जो नई स्पेक्ट्रम है दैट इज ऑक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द एयरवेज दैट वाज ब्रॉट फॉर द कंपनीज दैट इज सेट टू एक्सपायर इन 2021. तो जितनी भी एयरवेज जो कंपनीज ने ली है उनकी जो वैलिडिटी है वो 2021 में एक्सपायर हो रही है, इस वजह से ऑक्शन अभी की जा रही है. नाउ कमिंग टू द बिडर्स हु आर लाइकली द बिडर्स, तो 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में, दैट इज रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारत बायोटेक और VI मतलब आइडिया और वोडाफोन जो मर्ज हो गई है. सो दे आर द एलिजिबल कंटेंडर टू बाय द स्पेक्ट्रम. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3, जो फॉरेन कंपनीज के जो वेंडर्स होंगे वो भी एलिजिबल होंगे टू बीट इन द एयरवेज, बट उनके लिए जो एक क्राइटेरिया रखी गई है कि दे हैव टू सेट अप ब्रांचेस इन इंडिया and register in Indian companies, right? So they need to collaborate with any Indian companies to operate or take part in the spectrum process or the bidding process, right? Then only they can avail this benefit. Now बात करें adjusted gross revenue की, मैंने आपको पहले भी AGR के बारे में कॉन्सेप्ट बताया, AGR है क्या. तो जो भी सक्सेसफुल बिडर्स होंगे
उनको अपने प्रॉफिट की 3% का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है स्पेक्ट्रम चार्जेस के तौर पे देने होंगे, एंड दिस वुड एक्सक्लूड द वायरलेस सर्विसेज, राइट। तो वायरलेस सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, दिस वुड एक्सक्लूड दैट। और जो 3% का जो चार्जेस है दैट वुड बी पेड एज एन स्पेक्ट्रम चार्जेस। तो AGR इसमें भी मेंटेन रखा गया है। Now coming to the third topic, that state warned of the spike of COVID-19 viruses. कुछ 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें अभी भी COVID-19 के इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उनको वार्निंग दी गई है। दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2. So the health secretary has written to the state of Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh and West Bengal that the cases of the COVID-19 are spiking in the state, and they have urged the state government to take concrete actions to curb the spike of COVID-19 cases. Now बात करें अगर स्टेट्स की, तो दे हैव बीन रिपोर्टिंग एन अपसर्ज इन द डेली COVID-19 केसेस, और रिसेंट के टाइम में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं और कंट्रीज़ की अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज़ में भी, तो चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। वैक्सीन इज ऑलरेडी ऑन द वे, तो इंडिया वुड बी ऑल्सो स्टार्टिंग इट्स वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर इमरजेंसी पर्पसेस वेरी सून, और ऑलरेडी ऑथराइजेशन मिल चुकी है। सो विद इन वीक इंडिया कुड स्टार्ट दैट प्रोसेस एज वेल। नाउ डायरेक्शंस टू द स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उसमें एडवाइस किया गया है टू मेंटेन ए स्ट्रिक्ट विजिल एंड टू टेक स्टेप्स टू चेक द राइजिंग ऑफ द केसेस। क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर जो चीज़ें हैं, खास करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, NDA एक्ट इज़ वेरी पावरफुल एक्ट, राइट, इन टर्म्स ऑफ पेंडेमिक। तो इस एक्ट के थ्रू जो भी चीज़ों को कर्ब करना है वो कर सकती है। नाउ इन द व्यू ऑफ न्यू वायरस स्ट्रेन ऑब्जर्व, current countries can report in the few state of the India, right? Now the authorities have been advised to take proactive actions, wearing of masks, social distancing and against restriction in the public place. That would be something that would be required. एक appropriate behavior चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसके लिए भी सारी रोड मैप तैयार हो सके, और जो वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अच्छे से इन स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन हैज बीन गिवन फ्रॉम द सेंटर टू दीज स्टेट्स दैट इंक्लूड, मैंने आपको बता दिया 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। Now coming to the other news, that is rise in the World Food Price Index. The news has been reported in the Hindu, and it talks about the food price rise index. So the relevance of this news can be very much in prelims examination. Also, it can help you in prelims general studies paper 3. So according to the UN Food Agency, that is World Food Price की अगर बात करें, it has risen in the 7 consecutive month and December प्राइस बढ़ रही है, प्राइस हुई है, और इंक्लूड जो हुई है कुछ बड़े बड़े जो कैटेगरीज हैं उनमें देखी गई है, लाइक बेयरिंग सुगर्स एंड पोस्टिंग ग्रेन्स। आई विल टेल यू डिटेल क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सो व्हाट इज फूड प्राइस इंडेक्स? अगर FPI की बात करें तो FPI इज अ मेजर ऑफ मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी। जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो मंथली वेरिएशन आती है, ये आप ध्यान रखें, दिस इज अ मंथली वेरिएशन। मंथली वेरिएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को मेजर की जाती है, एंड दिस इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ एवरेज 5 कमोडिटीज ऑफ द ग्रुप दैट इज वेट इन द एवरेज एक्सपोर्ट शेयर ऑफ द, राइट। और अगर बात करें एक्सपोर्ट ऑफ 55 कमोडिटीज, तो 55 कमोडिटीज क्वांटिटीज एंड अपडेटेड मंथली वुड बी देयर। तो ऐसे 55 कमोडिटीज है इंटरनेशनली जिनके प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। ना व्हाट इज प्राइस इंडेक्स बास्केट? कौन कौन से ऐसे बास्केट्स हैं जो इसके अंदर में है? तो अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो दिस इंक्लूड सेरेल्स, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, शुगर, और एवरेज की अगर बात की जाए तो इट वाज 107 पॉइंट इन द लास्ट मंथ, एंड प्रेजेंट दिस इज 105 इन नवंबर, सो इट इंक्रीजेस टू ऑलमोस्ट 2, so 105 to 107. Now for the whole 2020 की अगर बात करें तो जो बेंचमार्क है दैट इज एवरेज फॉर 97.9 एंड 3 ईयर हाई इज 3.1 इंक्रीज फ्रॉम 2019। तो अभी जो इंक्रीज हुई है वो ऑलमोस्ट 3% की इंक्रीज देखी गई है पूरे होल में। और जो सेरेल प्राइस इंडेक्स है, CPI भी आती है, आप इसकी वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएगी। तो CPI की अगर बात करें तो 1.1% की राइज देखी गई दिसंबर में फॉर दिस मंथ, एंड फॉर ऑल 2020 द एवरेज वाज 6.6%, जो 2019 की जो लेवल थी उससे 6.6% अबव रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड प्राइस इंडेक्स एंड इट्स बास्केट। Now coming to the last topic, that is getting ready for the vaccine. किस तरह से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होनी है इंडिया में
उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, सो दैट दे कैन कम अप विद दैट एंड एग्जीक्यूट द वैक्सीनेशन प्रोसेस इन द एंटायर कंट्री. So with the announcement of India having approved the COVID-19 वैक्सीन इमरजेंसी यूजेस के लिए अप्रूव कर दी गई है अथॉरिटी की तरफ से. अब ये जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से जो पेंडेमिक अब जो टल गई है, ऑलमोस्ट वी आर ओवरकमिंग द पेंडेमिक बिकॉज वी हैव द वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है. तो इस चीज के बाद किस तरह से इसको एडमिनिस्टर करना है एंड व्हाट वुड बी द वे दैट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री वुड बी वैक्सीनेटेड, उसके लिए क्या रोड मैप होनी चाहिए, वो इस एडिटोरियल में पूरी डिस्कशन की गई है. उससे पहले कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं दैट इंडिया वुड रिक्वायर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर गिविंग द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बिकॉज दिस वुड बी द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया बीइंग द सेकेंड पॉपुलस कंट्री. और अगर बात करें ओवर 44 लाख फ्रंटलाइन वर्कर जो है इंडिया में काम कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19, बट एट सेम टाइम अभी भी जो बहुत सारे स्टेट्स है खास करके रूरल इंडिया में वो अंडर स्टाफ्ड है. तो क्या रूरल इंडिया में इम्यूनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी या गवर्नमेंट के पास क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके साथ हम रूरल इंडिया को भी पैरेलली कवर कर सकते हैं अर्बन इंडिया के साथ, राइट? सो द वैक्सीनेशन प्रोसेस नीड टू गो पैरेलली. नाउ प्रोजेक्ट इको है जिससे बहुत हद तक मदद मिल सकती है इंडिया को. एक इनोवेशन थी प्रोजेक्ट इको जहां पे ये स्टार्ट की गई थी फॉर ट्रीटिंग द हेपेटाइटिस एंड दिस वाज अ न्यू ट्रेनिंग एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ इस इको प्रोग्राम के थ्रू लोगों को खास करके जो वॉलंटियर थे उनको ट्रेन किया गया था HIV, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एडिक्शन, मेंटल डिजीज और एनी अदर कंडीशंस के लिए, ताकि वो लोगों को काउंसलिंग कर सके या फिर ज़रूरत पड़ने पे उनको इंजेक्शंस या जितने भी वैक्सीन लगते हैं वो दे सके प्रोजेक्ट इको के थ्रू, राइट? तो इसके रेफरेंस लेते हुए खास करके इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं. ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन रहेगी टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ वर्कर अंडर रिजर्व कम्युनिटी टू प्रोवाइड पेशेंट्स बेस्ट पॉसिबल केयर, राइट? सो एक डमी बनाई जा सकती है या एक रोल मॉडल रखा जा सकता है इको प्रोजेक्ट को, जिसको इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन के दौरान भी यूज की जा सकती है. नाउ इको गिव अस द एबिलिटी टू react healthcare worker in the most remote area, training compatible to the healthcare worker, जो कि लार्जेस्ट टारगेट होगी इंडिया में. खास करके रूरल इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन चंक्स में बहुत ज़्यादा है बिकॉज वी हैव द चंक्स पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया. तो उसको प्रोजेक्ट इकोस की तरह लोगों को ट्रेन करके जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में की गई थी, सेम पैरामीटर यूज करके भी वी कैन अचीव द फुलेस्ट पोटेंशियल. नाउ द वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, ट्रेनिंग मोर एंड मोर हेल्थ केयर वर्कर वुड बिकम द कोविड-19 एक्सपर्ट. अभी खास करके जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए ताकि वैक्सीनेशन प्रोसेस में दिक्कत नहीं, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी बनाना बहुत ज़रूरी है सारे एज ग्रुप को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप दे वुड बी प्रायोरिटाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस, राइट? तो ट्रेनिंग मोर एंड मोर पीपल वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन. और अगर इको प्रोजेक्ट से कुछ गवर्नमेंट अगर उस रोल मॉडल से कुछ अगर सीख लेना चाहती है या कुछ उस तरह की चीज़ों को वापस रेप्लिकेट करना चाहती है, तो दिस वुड रैम्प अप द न्यू हेल्थ केयर सिस्टम एंड दैट वुड हेल्प द कोविड-19 एक्सपर्ट एज वेल. फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो है उन लोगों को भी इससे बहुत हद तक मदद मिल सकती है. Now coming to the MCQs question of the day, the first question is from that we are asking is from economy. Consider the following statement with regards to the commercial paper. It is a short-term capital requirement available at the lower than the bank rate. It is the commercial paper not to be registered with the Security and Exchange Board of Commissions, SEC जिसको कहते हैं, right? It's not that tough question. I think many of you know the correct answer. So do let me know how many of you know the correct answer, and you write your answer in the comment section down below. Second question is from Modern India with reference to communal amount. Consider the following statement. It is an expression of British policy of divide and rule. It is entitled for the depressed class to have the separate electorate. So what is the correct option? You have to choose A, B, C or D, and you can let me know in the comment section down below, right? So do participate, write the question answer, write the correct answer in the comment section down below. कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. For more informative videos, more playlist you can find, compilations है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you.
For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.